सफर मेरा है तू ही मेरी मंजिल हो ಮದನ ಮನ ಮೋಹಿನಿ ನಿಯಾರನೆ ಬೊಂಬೆ ಹೇಳುತ್ತೈತೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳುತ್ತೈತೆ ನೀನೇ ರಾಜಕುಮಾರ ನೂರಾರು ಶಾಖೆಯ ಸೌಂದರ್ಯ ರೇಖೆಯ ನೂರಾರು ಶಾಖೆಯ. ಇಂದು ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ದಿನ. ಕನ್ನಡದ ಧ್ವಜ ಹಾರಿದೆ. ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನಾದು ಗೌರವ ಪೂರ್ಣ ಇರುವುದು. ಕಲಿಯುವೆನು ಕನ್ನಡ ನುಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ದಿನ. ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರತಿದಿನ. या इमोशनल ठीक है. हाँ, तो मैंने भड़ास निकाल दी और मैं अभी कूदने ही वाला था कि मेरे बाजू वाले रूम से मोटिवेशनल साउंड्स आने लगे. वहाँ साउंड्स आने लगे कि नो यू कैन ट्राई अगेन, ट्राई हार्डर अगेन. ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ನಾವು ಇಂದು ಈ ದಿನ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಆಚರಿಸೋಣ ಮತ್ತು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಅಸ್ಲಿ ಕಹಾನಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಯಾರ್ಡ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್. ಇಂದು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯನ್ನು ನಾವು ಆಚರಿಸೋಣ ಮತ್ತು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ, ಶುಭ ಸಂಜೆ. ಕನ್ನಡದ ಎಲ್ಲ ಮನಸ್ಸುಗಳಿಗೆ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ನನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ಕವಿ ಬೇಂದ್ರೆಯವರು ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕನ್ನಡವು ಕನ್ನಡವ ಕನ್ನಡಿಸುತ್ತಿರಬೇಕು, ಜಗದೇಳಿಗೆ ಆಗುವುದೇ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದಲೇ ಎಂಬ ಹಾಗೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಕವಿ ಪರಂಪರೆಯ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ಪರಂಪರೆಯ ಎಲ್ಲ ಕವಿವರ್ಯರನ್ನು ಮನದಲ್ಲಿ ನೆನೆಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ಈ ಕನ್ನಡ ಗೀತೆಯನ್ನು ನಾನು ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಮನಸ್ಸುಗಳಿಗೆ, ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಹಿಂಗಾದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ಕನ್ನಡದುದ್ಧಾರ, ಭಾಷೆ ಬಳಸಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವೇ ಕನ್ನಡ ಸಿಂಗಾರ. ಹಿಂಗಾದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ಕನ್ನಡದುದ್ಧಾರ, ಭಾಷೆ ಬಳಸಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವೇ ಕನ್ನಡ ಶೃಂಗಾರ. ಚಳುವಳಿ ಮಾಡಿದ್ರೇನು, ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಿದ್ರೇನು, ಧರಣಿ ಕೂತ್ರೂ ಪ್ರಾಣನೂ ಬಿಟ್ರು ಸರಿಯೇ. ಹಿಂಗಾದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ಕನ್ನಡದುದ್ಧಾರ, ಭಾಷೆ ಬಳಸಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವೇ ಕನ್ನಡ ಶೃಂಗಾರ. ಪಾಯಸ ಅನ್ನ ಖೀರ್ ಅಂತೀವ್, ಪಚಡಿ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ರಾಯ್ತ ಅಂತೀವ್, ಉಪ್ಪಿಟ್ಟನ್ನಕ್ಕೆ ಉಪ್ಮಾ ಅಂತೀವ್, ಹುಗ್ಗಿ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಪೊಂಗಲ್ ಅಂತೀವ್. ಪಾಯಸ ಅನ್ನ ಖೀರ್ ಅಂತೀವ್, ಪಚಡಿ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ರಾಯ್ತ ಅಂತೀವ್, ಉಪ್ಪಿಟ್ಟನ್ನಕ್ಕೆ ಉಪ್ಮಾ ಅಂತೀವ್, ಹುಗ್ಗಿ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಪೊಂಗಲ್ ಅಂತೀವ್. ಸಾರನ್ನಕ್ಕೆ ರಸಮ್ ಅಂತೀವ್, ರೊಟ್ಟಿ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ರೋಟಿ ಅಂತೀವ್, ಹುರುಳಿಕಾಯಿಗೆ ಬೀನ್ಸ್ ಅಂದು ಪಲ್ಯ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಕರಿ ಅಂತೀವ್. ಸಾರನ್ನಕ್ಕೆ ರಸಮ್ ಅಂತೀವ್, ರೊಟ್ಟಿ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ರೋಟಿ ಅಂತೀವ್, ಹುರುಳಿಕಾಯಿಗೆ ಬೀನ್ಸ್ ಅಂದು ಪಲ್ಯ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಕರಿ ಅಂತೀವ್. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪದವಿದ್ರೂ ಬೆಳೆಸೋಕೆ ಹಿಂಜರಿಕೆ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪದವಿದ್ರೂ ಬೆಳೆಸೋಕೆ ಹಿಂಜರಿಕೆ. ಹಾತೊರೆಯದೇತಕ್ಕೆ ಪಕ್ಕದ ಮನೆ ಕಹಳಕ್ಕೆ, ಯಾಕಣ್ಣ ಯಾಕಮ್ಮ ಯಾಕ್ಲೇ ತಮ್ಮ. ಹಿಂಗಾದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ಕನ್ನಡದುದ್ಧಾರ, ಭಾಷೆ ಬಳಸಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವೇ ಕನ್ನಡ ಶೃಂಗಾರ. ಹಿಂಗಾದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ಕನ್ನಡದುದ್ಧಾರ, ಭಾಷೆ ಬಳಸಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವೇ ಕನ್ನಡ ಶೃಂಗಾರ. ಅಣ್ಣಂಗೆ ಬ್ರದರ್ ಅಂತೀವ್, ತಮ್ಮಂಗೂ ಬ್ರದರ್ ಅಂತೀವ್, ಅಕ್ಕಂಗೂ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅಂತೀವ್, ತಂಗಿಗೂ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅಂತೀವ್. ಅಣ್ಣಂಗೆ ಬ್ರದರ್ ಅಂತೀವ್, ತಮ್ಮಂಗೂ ಬ್ರದರ್ ಅಂತೀವ್, ಅಕ್ಕಂಗೂ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅಂತೀವ್, ತಂಗಿಗೂ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅಂತೀವ್. ಚಿಕ್ಕಪ್ಪಂಗೂ ಅಂಕಲ್ ಅಂತೀವ್, ದೊಡ್ಡಪ್ಪಂಗೂ ಅಂಕಲ್ ಅಂತೀವ್, ಅತ್ತೆಗೂ ಆಂಟಿ ಅಂತೀವ್, ಅಜ್ಜಿಗೂ ಆಂಟಿ ಅಂತೀವ್. ಹೆತ್ತಮ್ಮ ಮಮ್ಮಾದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಮಿನಿಮಮ್ಮ, ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಮಿನಿಮಮ್ಮ ಆದ್ರೆ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ಮ. ಯಾಕಪ್ಪ ಯಾಕಣ್ಣ ಯಾಕ್ಲೇ ತಮ್ಮ. ಹಿಂಗಾದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ಕನ್ನಡದುದ್ಧಾರ, ಭಾಷೆ ಬಳಸಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವೇ ಕನ್ನಡ ಶೃಂಗಾರ. ಹಿಂಗಾದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ಕನ್ನಡದುದ್ಧಾರ, ಭಾಷೆ ಬಳಸಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವೇ ಕನ್ನಡ ಶೃಂಗಾರ. ಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕಲ್ತ್ಕೋ, ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಹಿಂದಿ ಕಲ್ತ್ಕೋ, ಏನು ಬೇಕೋ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ತ್ಕೋ, ಆದರೆ ಬದುಕೋಕೆ ಮಾತ್ರ ಕನ್ನಡ ಇಟ್ಕೋ. ಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕಲ್ತ್ಕೋ, ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಹಿಂದಿ ಕಲ್ತ್ಕೋ, ಏನು ಬೇಕೋ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ತ್ಕೋ, ಬದುಕೋಕೆ ಮಾತ್ರ ಕನ್ನಡ ಇಟ್ಕೋ. ಕಿಟ್ಟಲ್ಲು ಶರೀಫ್ ಸಾಬ್ರು, ನಿಸ್ಸಾರು ಮಾಸ್ತಿಯವರು, ಮಾತೃಭಾಷೆ ಬೇರೆ ಆದರೂ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟರು ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ.
ಕೇಳಿಲ್ವಾ ಆದ್ರೂ ಕಲ್ತಿಲ್ವಲ್ಲ, ಹಿಂಗಾದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ಕನ್ನಡದ ಉದ್ಧಾರ. ಭಾಷೆ ಬೆಳೆಸಿ ಬೆಳೆಸಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವೇ ಕನ್ನಡ ಶೃಂಗಾರ, ಹಿಂಗಾದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ಕನ್ನಡದ ಉದ್ಧಾರ. ಭಾಷೆ ಬೆಳೆಸಿ ಬೆಳೆಸಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವೇ ಕನ್ನಡ ಶೃಂಗಾರ. ಚಳುವಳಿ ಮಾಡಿದ್ರೇನು ಧರಣಿ ಕೂತ್ರೇನು ಪ್ರಾಣನೂ ಬಿಟ್ರು ಸರಿಯೇ, ಹಿಂಗಾದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ಕನ್ನಡದ ಉದ್ಧಾರ. ಭಾಷೆ ಬೆಳೆಸಿ ಬೆಳೆಸಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವೇ ಕನ್ನಡ ಶೃಂಗಾರ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈಗ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಕನ್ನಡಿಗರೇ, ನಾನು ಎಲ್ಲ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೂ ಕನ್ನಡನ ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಒಬ್ಬಳು IT ಎಂಪ್ಲಾಯ್. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸೇ ರನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಆದರೆ ಬೇರೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬಳಸೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯೋ ಕನ್ನಡನ ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇಂದಿಗೆ ನಮಗೆ ಕುವೆಂಪು ಅವ್ರು ಕೇಳಿರ್ತೀವಿ, ಬೇಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕೇಳಿರ್ತೀವಿ, ಮಾಸ್ತಿ ಅವ್ರು ಕೇಳಿರ್ತೀವಿ. ಆದರೂ ಆ ಎಲ್ಲ ಮಹಾಕವಿಗಳಿಗಿಂತ ನನಗೆ GP ರಾಜರತ್ನಂ ಅವರ ಕನ್ನಡ ಅಭಿಮಾನ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಾರಣ, ನರ್ಕ ಕಿಳಿಸಿ ನಾಲ್ಗೆ ಸಿಲ್ಸಿ ತುಟಿ ಹೊಲ್ಸಾಕಿದ್ರೂ ಮೂಗ್ನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಪದ್ವಾಡ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಮನ್ಸನ್ನು ನಿಕ್ಕಾಣೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. तो नेक्स्ट परफॉर्मर है प्रज्वल. ತರವಲ್ಲ ತಗಿ ನಿನ್ನ ತಂಬೂರಿ ಸ್ವರ, ಬರದೆ ಬಾರಿಸದಿರೋ ತಂಬೂರಿ. ತರವಲ್ಲ ತಗಿ ನಿನ್ನ ತಂಬೂರಿ ಸ್ವರ, ಬರದೆ ಬಾರಿಸದಿರೋ ತಂಬೂರಿ. ಸರಸ ಸಂಗೀತದ ಕುರುಹುಗಳರಿಯದೆ, ಸರಸ ಸಂಗೀತದ ಕುರುಹುಗಳರಿಯದೆ, ಬರದೆ ಬಾರಿಸದಿರೋ ತಂಬೂರಿ. ತರವಲ್ಲ ತಗಿ ನಿನ್ನ ತಂಬೂರಿ ಸ್ವರ, ಬರದೆ ಬಾರಿಸದಿರು ತಂಬೂರಿ. ಮದ್ದಾಲಿದನಿಯೋಳು ತಂಬೂರಿಯದ ತಿದ್ದಿ ನುಡಿಸಬೇಕು ತಂಬೂರಿ. ಮದ್ದಾಲಿದನಿಯೋಳು ತಂಬೂರಿಯದ ತುದ್ದಿ ನುಡಿಸಬೇಕು ತಂಬೂರಿ. ಸಿದ್ಧ ಸಾಧಕರ ವಿದ್ಯೆಗೆ ಒದಗುವ, ಸಿದ್ಧ ಸಾಧಕರ ವಿದ್ಯೆಗೆ ಒದಗುವ, ಬುದ್ಧಿವಂತಗೆ ತಕ್ಕ ತಂಬೂರಿ. ತರವಲ್ಲ ತಗಿ ನಿನ್ನ ತಂಬೂರಿ ಸ್ವರ, ಬರದೆ ಬಾರಿಸದಿರೋ ತಂಬೂರಿ. ಹಸನದ ಮ್ಯಾಳಕ್ಕೆ ತಂಬೂರಿದು ಕುಶಲರಿಗೊಪ್ಪುವ ತಂಬೂರಿ. ಹಸನದ ಮ್ಯಾಳಕ್ಕೆ ತಂಬೂರಿದು ಕುಶಲರಿಗೊಪ್ಪುವ ತಂಬೂರಿ. ಶಿಶುನಾಳಧೀಶನ ಓದು ಪುರಾಣದಿ, ರೇ 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 ರಾ ಶಿಶುನಾಳಧೀಶನ ಓದು ಪುರಾಣದಿ ತಂಬೂರಿ. ತರವಲ್ಲ ತಗಿ ನಿನ್ನ ತಂಬೂರಿ ಸ್ವರ, ಬರದೆ ಬಾರಿಸದಿರೋ ತಂಬೂರಿ. ತರವಲ್ಲ ತಗಿ ನಿನ್ನ ತಂಬೂರಿ ಸ್ವರ, ಬರದೆ ಬಾರಿಸದಿರೋ ತಂಬೂರಿ.
ಬರದೆ ಬಾರಿಸದಿರೋ ತಂಬೂರಿ ಬರದೆ ಬಾರಿಸದಿರೋ ತಂಬೂರಿ. तू सफर मेरा है, तू ही मेरी मंजिल, तेरे बिना गुजारा ऐ दिल है मुश्किल. तू मेरा खुदा, तू ही दुआ में शामिल, तेरे बिना गुजारा ऐ दिल है मुश्किल. मुझे आसमाती है तेरी कमी, मेरी हर कमी को है तू लाज़मी. जुनून है मेरा बनूं मैं तेरे काबिल, तेरे बिना गुजारा ऐ दिल है मुश्किल. ये रूह भी मेरी, ये जिस्म भी मेरा, उतना मेरा नहीं जितना हुआ तेरा. तूने दिया है जो वो दर्द ही सही, तुझसे मिला है तो इनाम है मेरा. मेरा आसमां ढूंढे तेरी कमी, मेरी हर कमी को है तू लाज़मी. ज़मीं पे ना सही तो आसमां में आमिल, तेरे बिना गुजारा ऐ दिल है मुश्किल. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. It was a wonderful performance by Prajwal sir. Now I would like to keep the flow as same and call our stand-up comedian of the day, Alan. Hi guys. So today I am going to be performing a wonderful stand-up in front of you guys about kids. In our modern times, kids are always seen as saints. They are very good children of God and role models of life. Kids, some kids, if you see, they are always, like they put their hands in nose and they like rotate it in 180 degrees. Some even do like the tornado motion also. But sometimes if people like adult, or if I do it, I have to scrape off that hard mucus so that no one will find it. And I have to stick it in below the bench so no one will find it, and I maintain my dignity. Having a kid has a lot of benefits, like free movie tickets and free bus tickets and etc. tickets. They also have the license to do everything, license to do anything bad, anything good. If sometimes if they hit me, for example, I, being an adult, have no idea how to react, and my hands are tied by it. When you go to kids, the most thing we do is play with their toys, because their toys gives us many it's very good to see their toys.
And the confidence of kids are also very much. They eat insects, they eat all types of things, and they are very confident in nature. They're also confident, like today is a festive day. If you see out, many kids will be playing any steps they know. They have no restrictions of steps. But if you see an adult there, they will be performing to impress the girls, or they will be performing in attention and standardist mode. Those who are old age also, they also do, they also try to become like kids. Those who are people like me, like 18 and 19 years old, they also become like kids so that they can get free food. I will do one more. And at last, when kids fart, they also have the license of cuteness. Whatever they do is adorableness and cuteness. So one more I will do. And happy birthday also, kids' happy birthdays are very natural and good. They are very happy. They cake cutting, everything. They are very happy to do it. But being an adult, we like to eat in private and isolations. It's very funny. My aim is to do all the notes I have done. I actually have written in hand and notes and also in this small paper. Since you have mentioned, this is my question paper. उसमें I don't know, results will come. May God bless me. Kids are also good founders. They have found many things. Like if you see in every books of a kid, you will see that they have turned great or good looking images into mustache and pirate images. They are inborn artists in the classrooms. So as you guys are not laughing too much, I am going to end my stand-up comedy. Thank you, and Kannada Rajotsava greetings. ओके गाइस, इस माहौल को सेम रखते हुए अभी स्टैंड अप कॉमेडी की थोड़ा सब लोग हंसे, तो आई जस्ट वांट टू कॉल NPX फॉर बीट बॉक्सिंग. लेट्स गो.
So next performer for singing, Ritik. Check. Can I have the volume, please? ಇನ್ನೂನು ಬೇಕಾಗಿದೆ ಒಲವು ಇನ್ನೂನು ಬೇಕಾಗಿದೆ ಇನ್ನೂನು ಬೇಕಾಗಿದೆ ಒಲವು ಇನ್ನೂನು ಬೇಕಾಗಿದೆ ಸೋಕಿ ನಿನ್ನ ಮೌನ ತಂಗಾಳಿನು ಹಾಡಾಗಿದೆ ಇನ್ನೂನು ಹೇಳೋದಿದೆ ನನಗೆ ಇನ್ನೂನು ಕೇಳೋದಿದೆ ಇನ್ನೂನು ಹೇಳೋದಿದೆ ನನಗೆ ಇನ್ನೂನು ಕೇಳೋದಿದೆ ಗಾಳಿ ಇರದೆ ಗಂಧವಿಲ್ಲ ಬೆಳಕು ಇರದೆ ಬಣ್ಣವಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ನೆನಪು ಇರದೆ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಉಸಿರಿಲ್ಲ ಗೆಳತಿ ಉಸಿರಿಲ್ಲ ಕನಸು ಇರದೆ ಕಣ್ಗಳಿಲ್ಲ ಚೆಲುವು ಇರದೆ ಹೆಣ್ಗಳಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ನೆರಳು ಸೋಕದೆ ಬದುಕಲಿ ಬಲವಿಲ್ಲ ಗೆಳತಿ ಬಲವಿಲ್ಲ ತಿಂಗಳ ಬೆಳದಿಂಗಳ ತಂಪಲ್ಲಿಯು ಬೆವರಿಳಿಸೋ ನೆತ್ತಿಯ ಸುಡು ಸೂರ್ಯನ ಬೇಗೆಯನ್ನು ತಂಪಿರಿಸೋ ಒಲವಿನ ಕೊರಳಿನ ಧ್ವನಿ ಕೇಳುತ್ತಿದೆ ಆದರೂ ಆ ಹೃದಯದ ಮುಖ ಕಾಣಿಸದೆ ಕಣ್ಣ ಮುಚ್ಚಿ ಕಾಡಿಗೂಡೆ ಯಾಕಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದು ಸೇರಮ್ಮ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಗೆಳತಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಈ ಹೃದಯವೇ ನಿನಗೆ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಏನಮ್ಮಿ ಏನಮ್ಮಿ ಯಾರಮ್ಮಿ ನೀನಮ್ಮಿ ಆಗೋಯ್ತು ನನ್ನ ಬಾಳು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಏನಮ್ಮಿ ಏನಮ್ಮಿ ಯಾರಮ್ಮಿ ನೀನಮ್ಮಿ ಆಗೋಯ್ತು ನನ್ನ ಬಾಳು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಬೆಳದಿಂಗಳು ನೀನೇನಮ್ಮಿ ಲಾಲಿನ ಹಾಡ್ಲೆ ನಮ್ಮಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಂಗ್ ಕಾಣ್ತೀಯಮ್ಮಿ ದೃಷ್ಟಿನ ತೆಗಿಲೆ ನಂಬಿ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದ ಗೊಂಬೆಗೆ ಜೀವವು ಬರಲು ನಿನ್ನಂಗೆ ಕಾಣ್ತದೆ ನೋಡಮ್ಮಿ ನೀ ಮುದ್ದು ಕಮ್ಮಿ ಕಲ್ಲಿನ ಬಸವನು ಕಣ್ಣೋಡಿತಾನೆ ನೀನಂದ್ರೆ ಜಾತ್ರೆ ಕೇಳಮ್ಮಿ ವಯ್ಯಾರಮ್ಮಿ ಕಾಲುಂಗ್ರ ಹಾಕ್ಲೇನಮ್ಮಿ ಹಣೆಬುಟ್ಟು ಇಡ್ಲೇನಮ್ಮಿ ನಮ್ ಪ್ರೀತಿ ಬೆಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ನಾವಿಬ್ರು ಯಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಓ ಮದನ ಮನ ಮೋಹಿನಿ ನಿಯಾರಲೆ ಕಂಡೆ ಮನ ಮೋಹಕ ಮಯಾ ಕಳೆ ಭಾವನೆಯ ಬರಸೆಳೆತ ಶೂರ ಶಾಕುಂತಲೆ ಬಯಲುವಾಗಿ ಅರಳಿದೆ ಮನದಿ
ಪ್ರೇಮ ಕಾವ್ಯಗಳೇ ಅರೆಯೇನೋ ಬದಲಾದ ಹಾಗಿದೆ ಮಳೆ ಬಿಲ್ಲೊಂದು ಮೈಗಂಟಿದೆ ಮದನ ಮನಮೋಹಿನಿ ನಿಯಾರನೆ ಕಂಡೆ ಮನಮೋಹಕ ಮಾಯಾ ಕಣೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು गाइज मेरे को पता है जिसके बारे में मैं बोलने जा रहा हूँ ना उसके लिए कन्नड़ा नहीं हर एक लैंग्वेज अच्छी लगती है बट मैं स्पेशली दिल से चाह रहा था कि उस शख्स के लिए उस बड़ी हस्ती के लिए कन्नड़ा में कुछ बोलूँ बट मैंने बहुत ट्राई किया मेरे को वो परफेक्ट अल्फाज नहीं मिल पाए कन्नड़ा में आई एम सॉरी गाइज सॉरी फॉर दैट थिंग बट जिधर बचपन से इधर कर्नाटका में बड़ा हूँ सबसे बहुत मिला हूँ बट हर एक आर्टिस्ट देखा है हर एक सितारा देखा है बट आसमान में उसके जैसा सितारा कोई ना था ना है कोई नहीं है था उसने प्रूफ किया कि वो राजकुमार सर का ही बेटा है मैं शुरू करने से पहले चाहता हूँ सब लोगों को थोड़ा वेट करना चाहता हूँ बिकॉज सब लोग आना चाहिए बिकॉज आई वांट परफेक्ट और लास्ट में आप सबको एक गाना तो आता ही होगा अगर आप जानते हो तो आप जान गए होगे गाना कौन सा है अपू सर का तो प्लीज़ लास्ट में आप सभी मेरे भाई ऋतिक भाई आप सभी बीट बॉक्सर भाई सब प्लीज़ लास्ट में जब नीवे राजकुमारा कहकर कहूँगा तो आप सब लोग ज़ोर से बॉम्बे हेल उताई दे उनका गाना गाओ यार प्लीज़ उनको आज सब लोग सिर्फ कर्नाटका के बारे में बोलेंगे पर मैं उस लड़के उस इंसान और उसकी फैमिली की तरफ से ही मेरे को एक हिसाब से लगता है 20% to 30% ऑफ कर्नाटका जानते हैं वो लोग उनसे तो वो एक ऐसा हस्ती है जो आज तक मरा नहीं जिस्म तो बेशक दफन हो गया पर उसकी यादें उसके क़िस्से उसकी कहानियाँ उसके जो अल्फाज हैं आज तक सबके घरों में और सबके दिलों में एक चित्रकार की तरह बस चुकी हैं वो शख्स सबसे अलग था हर एक गरीब को सहारा देता हर एक गरीब का सहारा भी बनता जब भी वो पिक्चर में आता जब भी वो बड़े पर्दे में दिखता तो सबकी सांसें थम थम के चलती थी और वो दिन मुझे आज भी याद है जब वो दुनिया छोड़ कर गए थे सबको हॉलीडे मिला था तो उस वक्त मेरे को पता नहीं था ये हस्ती कौन थे बट उसके बाद जब मैंने जाना मैं ख़ुद दिल से रोया था उस वक्त तो उस शख्स के लिए उस इंसान के लिए मैंने कुछ लिखा है वो शख्स के बारे में कुछ अल्फाज लिखे हैं दिल से दिया सबको मोहब्बत और दया का नूर दिल से दिया सबको दया और मोहब्बत का नूर वो चुप कर करता था सबके लिए नेक काम का इज़हार गरीबों और ज़रूरतमंद का था वो हमेशा सहारा हर मुस्कान से मिटा देता गम और साया स्क्रीन पर था वो सितारा लेकिन दिल से था फरिश्ता उसकी यादें सदा रोशन रहे और मंजर और रास्ता मोहब्बत और दया का था वो हमेशा सहारा हर दिल में अमर हो गया नीवे राजकुमारा गाइस प्लीज़ आई वांट प्रज्वल भाई टू कम एंड सिंग प्लीज़ ऋतिक भाई प्लीज़ ताइदे ಮತ್ತೆ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದೆ ನೀವೇ ರಾಜಕುಮಾರ ಬೊಂಬೆ ಹೇಳುತ್ತೈತೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳುತ್ತೈತೆ ನೀನೇ ರಾಜಕುಮಾರ ಹೊಸ ಬೆಳಕೊಂದು ಹೊಸಿಲಿಗೆ ಬಂದು ಬೆಳಗಿದೆ ಮನಗಳ ಹಿಂದೂ ಆರಾಧಿಸೋ ರಾಜರತ್ನನು ಆಡಿಸಿಯೇ ನೋಡು
ಬೀಳಿಸಿಯೇ ನೋಡು ಎಂದು ಸೋಲದು ಸೋತು ತಲೆಯ ಬಾಗದು. ಗೊಂಬೆ ಹೇಳುತ್ತೈತೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳುತ್ತೈತೆ ನೀನೇ ರಾಜಕುಮಾರ. ಗುಡಿಸಲೇ ಆಗಲಿ ಅರಮನೆಯಾಗಲಿ ಆಟವೇ ನಿಲ್ಲದು ಎಂದು ಆಟ ನಿಲ್ಲದು. ಹಿರಿಯರೇ ಇರಲಿ ಕಿರಿಯರೇ ಬರಲಿ ಭೇದವೇ ತೋರದು ಎಂದು ಭೇದ ತೋರದು. ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು ಏನು ಇಲ್ಲದೆ ಹಾಗೆ ಬದುಕಿರುವ ಆಕಾಶ ನೋಡದ ಕೈಗೆ ನಿನದು ಪ್ರೀತಿ ಹಂಚಿರುವ ಜೊತೆ ಇರು ನೀನು ಅಪ್ಪನ ಹಾಗೆ ಹಣ್ಣೆಲೆ ಕಾಯೋ ವಿನಯದಿ ಹೀಗೆ. ಆನು ಪಡೆದ ನಾವು ಪುನೀತ ಬಾಳು ನಗು ನಗುತ್ತ. ಬೊಂಬೆ ಹೇಳುತ್ತೈತೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳುತ್ತೈತೆ ನೀನೇ ರಾಜಕುಮಾರ. ತಾನೇ ಉರಿದು ಮನೆಗೆ ಬೆಳಕು ಕೊಡುವ ದೀಪವಿದು ನನ್ನ ದೀಪವೇ ಇದು. ಆಡಿಸುವಾಟನ ಕರುಣೆಯ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಪಾಠವಿದು ಸಮಯದ ಸೂತ್ರವನದು. ಒಂದು ಮುತ್ತಿನ ಕಥೆಯ ಹೇಳಿತು ಈ ಬೊಂಬೆ. ಆ ಕಥೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ರಾಜ ನಂಗೆ ನೀನು ಬಂದೆ. ಯೋಗವು ಒಮ್ಮೆ ಬರುವುದು ನಮಗೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಒಂದೇ ಉಳಿಯುವುದು ಕೊನೆಗೆ. ಸೂರ್ಯನೊಬ್ಬ ಚಂದ್ರನೊಬ್ಬ ರಾಜನು ಒಬ್ಬ ಈ ರಾಜನು ಒಬ್ಬ. ಆಡಿಸಿಯೇ ನೋಡು ಬೀಳಿಸಿಯೇ ನೋಡು ಎಂದು ಸೋಲದು ಸೋತು ತಲೆಯ ಬಾಗದು. ಬೊಂಬೆ ಹೇಳುತ್ತೈತೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳುತ್ತೈತೆ ನೀನೇ ರಾಜಕುಮಾರ. सुपर, थैंक यू. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ऐसे ही लोफी मूड रखते हुए मैं एक शख्स को बुलाना चाहता हूँ. उम्र छोटी है पर उसके अल्फाज बहुत बड़े होते हैं. वो शख्स इधर सबसे छोटी उम्र है बट वो अल्फाज बहुत बड़े बड़े करता है. यस गाइस, आई जस्ट वांट टू कॉल यज़दान ऑन द स्टेज, प्लीज़ ब्रो. अभी मूड था, सब लोग पुनीत राजकुमार सर के बारे में बोल रहे थे, तो मैंने अभी बैठ के कुछ लिखा है उनके बारे में. मुझे उतनी कन्नड़ा तो नहीं आती पर मैंने इंग्लिश में लिखने की कोशिश की है. तो लिखा था कि आई स्पीक ऑफ हिम विथ प्राइड, विथ लव इन माई वॉइस, फॉर नोइंग पुनीत सर's grace was life's greatest choice. He may have left the world but not my heart's space. His smile, his soul still walks beside me in every place. तो ये लिखा था उनको ट्रिब्यूट देने के लिए. और उतनी तो कन्नड़ा नहीं आती पर मेरी मम्मी जो है, मैंने इंग्लिश में लिखा था एक पोम, उसको मेरी मम्मी ने कन्नड़ा में ट्रांसलेट करके दिया है. तो लिखा कुछ यूँ था कि इंदु राज्योत्सवद दिन
ಇಂದು ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ದಿನ ಕನ್ನಡದ ಧ್ವಜ ಹಾರಿದೆ. ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನಾದು ಗೌರವ ಪೂರ್ಣ ಇರುವುದು. ಕಲಿಯುವೆನು ಕನ್ನಡ ನುಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ದಿನ. ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ प्रतिदिन. और मेरे जॉनर में वापस आना चाहूँगा मैं. मेरा जॉनर है इश्क. तो उसमें एक शेर लिखा हुआ था मैंने. कुछ लिखा कुछ यूँ था कि अगर प्यार हो गया है तो उसका इजहार ज़रूर करना. अगर प्यार हो गया है तो उसका इजहार ज़रूर करना. और अगर अब तक प्यार नहीं किया तो मेरी जान एक बार प्यार ज़रूर करना. अगर प्यार हो गया है तो उसका इजहार ज़रूर करना. और अगर अब तक प्यार नहीं किया तो मेरी जान एक बार प्यार ज़रूर करना. और अगर वो कहती है कि थोड़ा वक्त चाहिए मुझे, और अगर वो कहती है कि थोड़ा वक्त चाहिए मुझे, तो उस पर एतबार कर उसका थोड़ा इंतज़ार ज़रूर करना. अगर वो कहती है कि थोड़ा वक्त चाहिए मुझे, तो उस पर एतबार कर उसका थोड़ा इंतज़ार ज़रूर करना. और अगर वो दिल तोड़ दे तुम्हारा, और अगर वो दिल तोड़ दे तुम्हारा, तो खुदा से इसका इकरार ज़रूर करना. अगर प्यार हो गया है तो उसका इजहार ज़रूर करना. और अगर अब तक प्यार नहीं हुआ तो मेरी जान एक बार प्यार ज़रूर करना. एक और शेर लिखा था कि जब आपकी नज़र उनकी नज़र से मिल जाए. ये नज़र के बारे में है. तो लिखा कुछ यूँ था कि जब आपकी नज़र उनकी नज़र से मिल जाए तो समझ लीजिए कि आपको उनका दीदार हो गया. जब आपकी नज़र उनकी नज़र से मिल जाए तो समझ लीजिए कि आपको उनका दीदार हो गया. और अगर आप उनसे नज़रें मिलाना चाहें, और अगर आप उनसे नज़रें मिलाना चाहें तो समझ लीजिए कि आपको उनसे प्यार हो गया. थैंक यू एवरीवन. इसी के साथ स्टैंड अप कॉमेडी को मैं बुलाना चाहता हूँ सुप्रीत भाई फॉर स्टैंड अप कॉमेडी. यो ब्रो. दिस इज़ फॉर माई कन्नड़ा फैन. कन्नड़ा लोग हैं यहाँ पे, समझ रहे हो? है ठीक है. दिस इज़ फॉर यू. दिस इज़ फॉर माई गर्लफ्रेंड आई रोट. ಸೊ कि ಬರಡಾಗಿರೋ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಪರಿಮಳ ಬೀರೋ ಗಂಧ ನೀನು. ಬರಡಾಗಿರೋ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಪರಿಮಳ ಬೀರೋ ಗಂಧ ನೀನು. ನನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಥೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಂದ ನೀನು. ಬರಡಾಗಿರೋ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಪರಿಮಳ ಬೀರೋ ಗಂಧ ನೀನು. ನನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಥೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಂದ ನೀನು. ನಿಂಗೆ ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮನೆ ಕನ್ನಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕೇಳು, ಅದನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಚಂದ ನೀನು. तो रिसेंटली पता चला है कि वेस्टर्न में हमारे इंडियन स्टाइल बहुत फेमस हो रहा है. दे आर अडॉप्टिंग इंडियन स्टाइल्स. सो हाँ, वहाँ पे इंडियन टॉयलेट बहुत फेमस हो गया है. सीरियसली ब्रो. हाँ सीरियसली, उनको वहाँ के बेनिफिट्स पता चल गए हैं. वो सभी उतने जल्दी जल्दी वो सब अडॉप्ट कर रहे हैं. तो मुझे लगा कि अगर हमने उसका पेटेंट बना लिया तो जस्ट इमेजिन, वो साले हर चीज़ का पेटेंट बना रहे हैं. अगर हमने इसका पेटेंट बना लिया, वहाँ पे उनका हगना बंद हो जाएगा. जस्ट इमेजिन, वहाँ पे अमेरिका में एक बंदा हगेगा तो हमें उसके पैसे मिलेंगे. और ऐसा हो रहा है एक्चुअली. अमेरिका में एक बंदा हग रहा है और यहाँ पे 3 कंट्रीज की जीडीपी बढ़ रही. इफ़ यू नो यू नो. सो या तो अच्छा है. और मैं इंजीनियर हूँ. सो और इंजीनियरिंग मुझे कुछ नहीं कुछ खास करनी नहीं था एक्चुअली. नहीं रोज़गार हूँ भाई. जॉब है मेरे पास. तो इंजीनियरिंग में मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल लेनी नहीं थी, क्योंकि मेरे पापा और भैया ने मुझे फोर्स किया. पापा ने कहा कि सीएस ले ले, अच्छी प्लेसमेंट मिलेगी. भैया ने कहा सीएस ले ले, अच्छी लड़कियां मिलेंगी. और 2 साल हो गए, मुझे दोनों नहीं मिली. सही मैं अभी तक ढूंढ रहा हूँ. और तुम लोगों को भी मज़ा आ रहा होगा, मैं जोक कर रहा हूँ, तुम लोग हंस रहे हो. और पर एक टाइम था मेरी लाइफ में जब ऐसा कुछ नहीं था. सीरियसली मैम, एक फेस था. या तुम लोग हंसो मत यार, बहुत इमोशनल कहानी है. आपकी आंखों में आंसू आने वाले हैं अभी. सीरियसली कोई बात नहीं, मैं मेरे पास है. तो इमोशनल, हाँ इमोशनल होना है सबको. रोना है, रोना नहीं ब्रो. तो इंजीनियरिंग का फाइनल ईयर था. ऑलमोस्ट इंजीनियरिंग ख़त्म होने वाला था. एक तो वो दुख कि मैं कॉलेज छोड़ने वाला हूँ, ऊपर से मेरे पास जॉब नहीं था. और 3 P नहीं थे मेरे पास. 3 P's पता है ना सबको? 3 P's ऑफ लाइफ: पैसा, प्यार और पुच्ची. हाँ, पुच्ची मतलब पप्पी कहते हैं मराठी में, ठीक है? वो तो कहते हैं ना बच्ची, आप पुच्ची दे दे, दैट्स पुच्ची. नहीं
मतलब मैं उसी से सिंक तो करना चाहता हूँ पर बता नहीं रहा। ठीक है, वापस इमोशनल। ठीक है, मेरे पास जॉब नहीं थी, 3 पीस नहीं थे, और उस मोमेंट मुझे लगा कि सब ख़त्म कर देता हूँ। द लास्ट आई थिंक दैट वाज माय लास्ट सोल्यूशन फॉर एवरीथिंग। और रात के 2 बजे मैं कुर्सी पे चढ़ा, पैर पे नाड़ा बांधा, दूसरा गले में बांधने वाला था, और गले में बांधने वाला था तभी मुझे रियलाइज़ हो गया कि नवंबर ख़त्म हो गया है। तो 1 महीने से जो कंट्रोल किया था मैंने, वो भड़ास निकाल दिया। सो या इमोशनल। ठीक है, हाँ, तो मैंने भड़ास निकाल दी और मैं अभी कूदने ही वाला था कि मेरे बाजू वाले रूम से मोटिवेशनल साउंड्स आने लगे। वहाँ साउंड्स आने लगे कि नो, यू कैन ट्राई अगेन, ट्राई हार्डर अगेन, ओ या। और जैसे ही मैं मोटिवेट हो गया मोटिवेट हो गया कि मैं भी कर सकता हूँ, जैसे ही मैंने गले का फंदा निकाला उतने में वो लोग ताली बजाने लगे, टप 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 टप। और उस इंसिडेंट को 2 साल हो गया और मुझे अभी तक पता नहीं चला कि बॉयज़ हॉस्टल में मुझे मोटिवेट किसने किया था, सीरियसली। और नो ब्रो, मैं वेज कॉमेडी करता हूँ। तो या, और इंजीनियरिंग के बाद मैं जॉब ढूंढ रहा था, और बहुत मुश्किल से मुझे आईटी एक्सप्लोर करना था, क्योंकि आईटी में मज़ा आएगा, पैसे बहुत मिलेंगे, लड़कियां नहीं मिलेंगे ब्रो। यू कैन गेट चिनार। हाँ, सो मैं एक्सप्लोर कर रहा था, तो मैंने जॉब ले ली स्टार्टअप में। और स्टार्टअप मतलब बहुत ख़तरनाक स्टार्टअप। ठीक है, हाँ, मतलब उन्होंने मेरे आते हुए कहा था वी आर फैमिली, वी आर द वन। उन्होंने बताया नहीं कि सारा काम किसी एक को करना पड़ेगा। मैं उधर जा रहा हूँ और मेरा मैनेजर तो मतलब इतना हरामी, वो हर काम मुझसे करवा रहा है, हर काम मुझसे रोज़ कॉल कर रहा है, और हर हफ्ते बोल रहा है कि सुप्री तुम हर हफ्ते छुट्टी ले रहे हो, सुप्री तुम हर हफ्ते छुट्टी ले रहे हो। भोसड़ी के संडे कहते हैं उसे, मेरा हक है वो। और मेरा इंटरव्यू उस कंपनी में इतना ख़राब गया था, पहला राउंड हुआ मेरा साक्षी के साथ, HR साक्षी। दूसरा राउंड हुआ, एक लड़की थी, मे बी मिया नाम था उसका। एक ही दिन में 2 राउंड। मैं थक गया ब्रो, एक दिन में 2 राउंड बहुत होता है एक लड़के के लिए। हाँ, इंटरव्यू की बात कर रहा हूँ ब्रो, हेडेक हो गया मेरे को, हेडेक की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, बहुत हेडेक हो गया। और उन्होंने उसी वक्त मेरे को कहा कि 3rd राउंड के लिए रेडी हो जाओ सुप्रीत। आई वाज लाइक, मैं नहीं कर रहा। शुरुआत में इतनी मेहनत कराओ कि आने के बाद तो मेरी ले ही लोगे आप लोग। एंड सो उसके बाद तो हॉस्टल, मैंने अभी कहा था कि हॉस्टल की बात है, तो हॉस्टल की एक इंसिडेंट शेयर करता हूँ कि क्या हुआ कि नहीं इमोशनल नहीं है, तो बॉयज़ आप रिलेट कर पाओगे कि लड़ाई वड़ाई तो की ही होगी आपने कॉलेज में। हाँ, तो सेम हुआ था, मेरी फ्रेंड के बहन को किसी ने छेड़ दिया था। बहुत बुरा लग रहा है ना, मुझे भी लगा था। और मैं ये बात मैंने अपने दोस्त को बताया, और मैं वहाँ दोस्त को बताने जा रहा हूँ, वहाँ देख रहा हूँ कि मेरे दोस्त किसी और की बहन को छेड़ रहा है। जस्ट इमेजिन। और हम लोगों ने ना, हमारा फ्रेंड्स ग्रुप था, हमने गैंग बना लिया, भैंचोद मार के आएंगे सबको, और हम लोग उठाने लगे जो भी हमें मिल रहा है। मैंने हॉकी का स्टिक उठा लिया, एक ने चम्मच उठा लिया, एक ने कैंटीन से पनीर उठा लिया। सही में, क्योंकि कैंटीन का पनीर पत्थर जैसा ही होता है। तो हम पूरा रेडी होके मतलब चल रहे हैं, और इतना सीरियस सिचुएशन है, और मेरा दोस्त वहाँ पे यूट्यूब पे वीडियो देख रहा है, सीरियसली वो वीडियो देख रहा है, हाउ टू बीट 10 पीपल्स एट अ टाइम। समझ रहे हो, इतनी सीरियस सिचुएशन, और ये जो होते ये बकचोदी कर रहा है। और मेरे को गुस्सा आ गया, मैंने कहा ब्रो स्पीकर बढ़ा, मुझे भी देखनी है। और वे वीडियो ख़त्म की, और हम लोग 4 हैं, मतलब एक बाइक पे 3 लोग बैठ के, मतलब एकदम से वाड़ा वाओ वाओ की फीलिंग के साथ कि प्रीति को बचा के आएंगे। हालांकि उसका नाम शांतला था। और हम लोग मतलब जा रहे हैं बाइक में, और उतने में मैं देख रहा हूँ कि मेरा दोस्त एक और वीडियो देख रहा है। मेरे कहा जो देखना था वो तो देख लिया, अब क्या देख रहा है? हाँ, वो देख रहा है कि पीटने के बाद पुलिस वालों से कैसे बचे। हम तीनों ने हेलमेट ने नहीं पहनी थी, सर्कल में पुलिस वाले ने पकड़ लिया हमको। मतलब वकील साहब जाओ बात करो। वो गया पुलिस वाले के साथ, और पुलिस वाले की गांड में मार के कह रहा है कि कुछ लेने के बाद यही दबा दो। एंड वो मतलब उसकी इंटेंशन गलत नहीं था,
बटुआ था पॉकेट में, तो उसको मार के वो कह रहा था कि कुछ ले दे के बाद यही दबा दो, पर पुलिस वाले की नीयत में खोट था, उसने कुछ और दबा दिया और साइड में लेके गया। और मैं पूरा डर गया, क्या करें, पुलिस वाला है वो सामने वाला, मैं क्या करूं। और मैंने वही किया जो हर इंडियन करता है, मैंने यूट्यूब वीडियो निकाला हाउ टू डील दिस सिचुएशन, और यूट्यूब इतना हरामी कि 15 सेकंड का ऐड दिखा दिया, वो भी कॉन्डम का, सेफ्टी कम्स फर्स्ट। एंड और इस मोमेंट में मैं और वो उसे बचा सकते थे, पर मैटर वो इम्पोर्टेंट था। अभी तक प्रीति बची नहीं थी, हम लोग आगे भाग रहे हैं और बाइक लेके चला, और इतनी मुश्किल से पहुँचे, ट्रैफिक वैफिक वो सब क्रॉस करके वहाँ पे, और मैं देख रहा हूँ कि ये पुलिस वाला यहाँ पे ऑलरेडी पहुँच चुका है सही में। और मैं, मेरे हाथ में हॉकी का स्टिक है, मैं वॉचमैन मेरे को रोक रहा है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, रामलाल आज मैटर हो जाएगा तो बीच में मत आ। और मेरा दोस्त इतना चूतिया, उसने मुझे बताया नहीं कि वो गर्ल्स कॉलेज है, मेरा जाना अलाउड नहीं है वहाँ पे, समझ रहे हो, मुझे मारने के लिए अपना कटवाना पड़ेगा मैं वहाँ गया और साइड में यहाँ पे पुलिस वाला था, उसने कहा कि ये तुम्हारा आदमी नहीं है, ये मेरा आदमी है। और लाइक इसने 2 बार ऐसे करके, तीसरे बार ऐसे किया सही में। और मैं वहाँ पे गया और उसको देखकर मैं क्या, मेरा हॉकी स्टिक डर के भाग गया कि ये कहीं भी ले लेगा और ये मेरे को गया और मेरा कॉलर ऐसे पकड़ा, एंड आई वाज लाइक, उसका मैंने यहाँ पे नाम पढ़ लिया, उसका नाम था सलमान, ठीक है। मैंने कहा सलमान, आई एम नॉट योर विवेक कुछ ले दे के बाद यही दबा दो। एंड मैं उससे जैसे जैसे बच के बाहर आया और बाहर देख रहा हूँ कि मेरा दोस्त नहीं होता, अभी बाइक के साथ वो पार्क हुआ था वहाँ पे। मैं जस्ट आके खुली और सामने देख रहा हूँ कि उसे हॉकी गैंग वालों ने पकड़ रखा है कि हॉकी का स्टिक किधर है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि मैं स्टिक अंदर भूल आया था, अब मैं अंदर जा भी नहीं सकता। मैं बाहर पे गया पुलिस वाले के, आई मीन हॉकी ग्रुप वालों के सामने, तो उन्होंने आते ही कहा कि हॉकी का स्टिक किधर है। मैंने कहा ब्रो अंदर है, तमीज़ से बात करो, मैं भी तमीज़ से ही बात कर रहा हूँ। तो उसे गुस्सा आ गया, उसने मेरा कॉलर पकड़ लिया और सडनली वहाँ पे और 10 लोग आ गए और मेरी पर्सनैलिटी को देखते हुए 3 तो वापस चले गए कि इसके लिए 2 ही काफ़ी है। और मैंने कहा ब्रो मेरे को हल्के में मत ले, ठीक है, हालांकि हूँ पर ले मत, मैं 100 लोगों के बराबर हूँ, ठीक है। मैंने उसका हाथ निकाला, उतने में उन्होंने अपनी हॉकी स्टिक निकाली और मैं उतने में उनके पैरों में पड़ के बोला कि 100 लोगों के बराबर मतलब मैं 100 लोगों की स्टोरी एक अकेला आदमी बोल सकता हूँ, लाइक सॉरी ब्रो। तो उसका नाम था विवेक, एंड आई वाज लाइक विवेक आई एम नॉट योर सलमान कुछ ले दे के बाद यही दबा दो। सो रिसेंटली मेरे जॉब में भी ऐसा ही हो गया, मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो गया था, तो मैंने अपनी कंपनी की ईमेल से किसी और की कंपनी में अप्लाई कर दिया। तो ये बात मेरे मैनेजर को पता चल गई, उसने मेरे को बुलाया और मीटिंग में बोला कि तुम्हें एक्सपोज कर दूंगा, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और मुझे उतना ओवर कॉन्फिडेंट था कि मेरे को एक और कंपनी ऑफर आ जाएगा। हाँ, उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस नहीं है तो हम तुम्हें नहीं ले रहे। मेरी फट गई, मैंने वही किया जो मैं कर सकता था, लाइक मैनेजर, कुछ ले दे के बाद यही दबा दो। थैंक यू गाइस, दैट्स बीन माय टाइम। कुछ माहौल बन चुका है, तो अब नेक्स्ट आई वांट टू कॉल मलेश फॉर अ ब्यूटीफुल सिंगिंग। कम ऑन ब्रो, कम ऑन। ವೀರಧೀರರಾಳಿದ ನಾಡು ನಿನ್ನದು, ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರ ಪಾಡಿದ ಬೀಡು ನಿನ್ನದು, ವರ ಸಾಧು ಸಂತರ ನೆಲೆ ನಿನ್ನದು, ಮಹಾಶಿಲ್ಪಕಾರರ ನುಡಿ ನಿನ್ನದು, ಸಂಗೀತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸೆಲೆ ನಿನ್ನದು, ಕರುನಾಡ ತಾಯಿ ಸದಾ ಚಿನ್ಮಯಿ, ಈ ಪುಣ್ಯಭೂಮಿ ನನ್ನ ದೇವಾಲಯ, ಪ್ರೇಮಾಲಯ ಈ ದೇವಾಲಯ, ಕರುನಾಡ ತಾಯಿ ಸದಾ ಚಿನ್ಮಯಿ, ಸೌಂದರ್ಯ ರೇಖೆಯ ನೂರಾರು ಶಾಖೆಯ, ಸೌಂದರ್ಯ ರೇಖೆಯ ನೂರಾರು ಶಾಖೆಯ, ಆರಂಭ ಹೇಳು ಎಲ್ಲಿದೆ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಈ ಅಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ
ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಲೆಯಾಗಿದೆ. ಮಾತಾಡೋ ಬೇಲೂರ ಶಿಲೆಯಾಗಿದೆ. ಹೆಣ್ಣಾಗಿದೆ ಹೆಣ್ಣವಿಲಾಗಿದೆ. ಹೇ ನವಿಲೆ ಹೆಣ್ಣವಿಲೆ, ಹೇ ನವಿಲೆ ನವಿಲೆ ಹೆಣ್ಣವಿಲೆ ನವಿಲೆ. ಅನಿಸುತ್ತಿದೆ ಯಾಕೋ ಇಂದು ನೀನೇನೆ ನನ್ನವಳೆಂದು. ಮಾಯದ ಲೋಕದಿಂದ ನನಗಾಗೆ ಬಂದವಳೆಂದು. ಆಹಾ ಎಂಥ ಮಧುರ ಯಾತನೆ. ಕೊಲ್ಲು ಹುಡುಗಿ ಒಮ್ಮೆ ನನ್ನ ಹಾಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ. ಅನಿಸುತ್ತಿದೆ ಯಾಕೋ ಇಂದು ನೀನೇನೆ ನನ್ನವಳೆಂದು. ಮಾಯದ ಲೋಕದಿಂದ ನನಗಾಗಿ ಬಂದವಳೆಂದು. ಆಹಾ ಎಂಥ ಮಧುರ ಯಾತನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸೋನು ನಿಗಮ್ ಸರ್ ಸಾಂಗ್ಸ್. दो पल रुका ख्वाबों का कारवां और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ. दो पल की थे ए दिलों की दास्तां और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ. और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ. ಅಸ್ಲಿ ಕಹಾನಿ ಬ್ಯಾಕ್ಯಾರ್ಡ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು.